Uh, so this is session 4 in the series of Unit 3 for digital communication. In this session, we'll be talking about probability of error of different line codes. I want to mention over here one important thing. If you refer to this particular topic in different books that are available on the subject, you will observe that most of them talk about probability of error in terms of band pass, or what they call pass band modulation schemes. Pass band modulation schemes are basically ASK, FSK, PSK, etc. And the reason why they talk about probability of error in that respect is because in practical communication scenario, there is very little that is happening over long range of digital communication sequences, which does not require pass band modulation schemes. So normally the representations of ones and zeros are done on the basis of differing representations of sinusoidal carrier waves. And those sinusoidal carrier waves are basically being sent with respect to the logic that is being used in the ASK, FSK, etc., which we will talk about in Unit 4. So the idea behind this entire logic uh, that is covered in the books is the concept of how probability of bit error comes into picture in that particular modulation scheme. Um, the idea behind talking about what we call as the probability of bit error of different modulation schemes comes from that concept itself. So what we will be talking about today is the generic concept of how representations of ones and zeros can be actually used to create a probability of error definition. We have already done some portion of that in lecture 3, in which we defined that the probability of error under ideal reception under what we call as the optimum receiver. That is, you are using MASH filter to maximize the SNR, then you are using maximum likelihood to attain the decision, and finally the data that you have is going to be written in the form of q function with an argument s1 minus s0 divided by 2 sigma. So this baseline pe is equal to q function of s1 s1 minus s0 whole divided by 2 sigma. Just a second, let me fix that. Yep, 2 sigma. So this kind of a system, this thing has already been established, right? This formula we have already derived. Now the point is, in this particular formula, there are a couple of things that we need to be very careful about. First of all, what we can see over here is that you have S1 minus S naught representation. Now, first of all, we have to take into account that what is S1, what is S naught. तो S1 एंड S नॉट बेसिकली हमारे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने डेटा को लिया, आपने सिग्नल को लिया, और अगर मैं वन सिंबल की रिप्रेजेंटेशन को सैंपल करके डेटा को उठा रहा हूँ, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक जो आएगा वो है बेसिकली आपका वन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का सैम्पल्ड वर्जन जो आएगा वो हो जाएगा। और कायदे से जो हमने देखा था मैच फिल्टर के टाइम पे, तो ये एस्टिमेट रफली हमारे अंडर रूट ऑफ S1 की एनर्जी के तौर पे समझा जा सकता है, राइट? इट कैन बी अंडरस्टूड एज द स्क्वायर रूट ऑफ S1, मैं बात कर रहा हूँ। इट कैन बी अंडरस्टूड एज द अंडर रूट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सिंबल और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स वन। अगर मैं बात करता हूँ एस जीरो की, तो सिमिलरली जीरो की सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हुई चीज को एस जीरो कह दिया जाता था। तो अब अगर मैं एस वन माइनस एस नॉट के लॉजिक से समझूं इसको, सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक, तो आई कैन इंटरप्रेट दिस इन द टर्म्स ऑफ दैट दिस एस वन माइनस एस नॉट एंटिटी may be representing the under root of the energy of the signal that is represented by S1 माइनस एस नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम S1 माइनस एस नॉट के लॉजिक को यूज कर रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं S1 माइनस एस नॉट बेसिकली कैन बी अंडरस्टूड एज द एनर्जी और स्क्वायर रूट of the energy
of the symbolic representation of S1 minus S0, राइट। और ये जो हमारा फंडामेंटल निकल के आता है अंडर रूट ऑफ दिस, इसको कैलकुलेट करने के लिए कायदे से हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि दैट इज दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ द डिफरेंस सिग्नल, राइट। एंड एनर्जी ऑफ द डिफरेंस सिग्नल would simply mean integration. You go from obviously you can go from minus infinity to infinity, but हमें पता है कि symbolic representations 0 से t भी चल रहे हैं, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। 0 से टी बी, और ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। एंड फाइनली यू हैव एस टी, सॉरी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस वन। और एक और चीज़ मैं भूल गया, वो है ब्रैकेट, जो कि स्क्वेयरिंग के लिए चाहिए होगा। तो एस वन टी माइनस एस जीरो टी, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर्ड, एंड अलॉन्ग विद दिस यू हैव डी टी। तो ये मेरा एनर्जी रिप्रेजेंटेशन हो गया एस वन माइनस एस नॉट के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ऑलरेडी पता है वो ये है कि आपका जो सिग्मा है वो बेसिकली जो भी कह सकते हैं आप कि ऑब्वियसली बात है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर ही होगा, राइट। जो कि बेसिकली मेरी नॉइज़ पावर है या नॉइज़ एनर्जी है, राइट। और नॉइज़ एनर्जी या जो पर्टिकुलर चीज़ होती है उसको, क्योंकि हम वाइट नॉइज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाइट नॉइज़ के लॉजिक में इसकी रिप्रेजेंटेशन एन नॉट बाई टू से करी जाती है, राइट। तो सिग्मा स्क्वायर एन नॉट बाई टू होता है, ये जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ एन नॉट बाई टू होगा। तो ये कहानी हो गई। अब यही फंडामेंटल, ये दोनों चीज़ें जो मेरे पास आई हैं, अगर मैं इनको उठा करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर में डाल देता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर की डेफिनेशन जो हो गई वो सिंपली हो गई क्यू फंक्शन ऑफ एस क्यू आर टी। अब आप देखेंगे कि ये जो टू का फैक्टर बाहर है, अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ई डी डिवाइडेड बाई टू एन नॉट। इट्स नॉट दैट हार्ड टू फिगर आउट, आप देख सकते हैं। तो क्यू फंक्शन ऑफ रूट ई डी बाई टू एन नॉट, ये मेरा बेस निकल के आ जाता है। अब कायदे से किसी भी लाइन कोड के लिए करने के लिए मुझे सिर्फ उसकी एस वन और एस नॉट की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और उनका स्क्वायर करके उनकी एनर्जी निकाल लेनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक पैरामीटर होता है जिसको यूज़ किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में बहुत किस्म के इवैल्यूएशंस के लिए, जिसका नाम होता है ई बी बाई एन नॉट। ई बी बाई एन नॉट बेसिकली एनर्जीज का रेशो माना जाता है, ठीक है, क्योंकि हम फाइनाइट लेंथ के सिग्नल्स के बारे में बात कर रहे हैं टाइम में, इसीलिए उनको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है। और इसी वजह से एनर्जी रेशियोज के फॉर्म में ई बी बाई एन नॉट के लॉजिक से हम डिजिटल कम्युनिकेशन में किसी भी किस्म के इवैल्यूएशन को ट्रीट करते हैं। तो जब भी हम लाइन कोड्स के या किसी भी और सिस्टम के प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर को इवैल्यूएट करने के बारे में बात करते हैं, तो हमारा एक टारगेट रहता है कि भैया ई बी टू एन, ई बी बाई एन नॉट के रेशो के हिसाब से ज़रा उसकी पैरामेट्रिक वैल्यू दे दीजिए। इसका एडवांटेज ये है कि अगर मैं फाइनली ई बी बाई एन नॉट सेम रखते हुए दो लाइन कोड्स को कंपेयर करता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई भी दो लाइन कोड्स या इन 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 जेनरिक केस एनी टू रिलेटेबल सीक्वेंसेस, अगर मैं इन दो किसी भी दो रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ करता हूँ, तो वो दोनों रिप्रेजेंटेशंस आपस में किस तरीके का रिलेशन रख रहे हैं, किसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर ज़्यादा है, किसका कम है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो ये चीज़ हमें पता चल जाती है। जितना कम प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर होगा, ऑब्वियसली मेरा सिस्टम उतना अच्छा माना जाएगा। इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर कहना ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ई बी क्या है? ई बी इज द एवरेज बिट एनर्जी। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज द एवरेज बिट रिप्रेजेंटेशन एनर्जी। वन और जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी दो एनर्जीज आ रही हैं उन दोनों का एवरेज ई बी माना जाता है। अब कायदे से हम दो काम हर लाइन कोड के लिए करेंगे, एक निकालेंगे ई डी क्या है, एक निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है उसके रिस्पेक्ट में, और तीसरा काम हम ये करेंगे कि ई बी की इवैल्यूएशन करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर को ई बी बाई एन नॉट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ई बी बाई एन नॉट के फॉर्म में लिखना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है
एक्सक्यूज मी, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो जेनेरिक फॉर्मुलेशन बनी है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जेनेरिक फॉर्मुलेशंस जो हैं सारे के सारे पर्टिकुलर लाइन कोड्स के लिए वो ई बी बाई एन नॉट के फॉर्म में कैसे रिलेटेड हैं और किसका रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे से कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर का डिफरेंस लेके आता है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं एक एक करके डिफरेंट लाइन कोड्स के बारे में। अम, एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि डिफरेंशियल एनकोडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। ठीक है, डिफरेंशियल एनकोडिंग डेटा सिक्योरिटी के लिए होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर की रिडक्शन के लिए कंपैरेटिवली नहीं मानी जाती है। अनटिल एंड अनलेस आप पर्टिकुलरली कोई सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसके केस में डिफरेंशियल एनकोडिंग हेल्प करती है, हमारे बिट एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रेलेवेंट नहीं माना जाता। तो इस वजह से आप जब एनआरजेड के बारे में बात करते हो या आरजेड के बारे में बात करते हो या मैनचेस्टर के बारे में बात करते हो या एएमआई के बारे में बात करते हो, तो ये सारे के सारे चारों फैमिलीज के जो लाइन कोड्स हैं ये पोलैरिटीज पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इस डिफरेंशियल इनकोडिंग के बारे में उसमें बात हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिपोलर एनआरजेड सीक्वेंस। तो यूनिपोलर एनआरजेड सीक्वेंस के अंदर जो है हमारा एम है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम ई डी कैलकुलेट करेंगे। तो ई डी लेते हैं और ई डी कैलकुलेट करने के लिए मुझे ऊपर जो इंटेग्रल मैंने लिख रखा है वो इवेल्युएट करना है। सबसे पहले ज़रा रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन तो लिख लें। तो रिप्रेजेंटेटिव पोर्शंस जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि एस वन टी इज़ बेसिकली इक्वल टू ए फॉर ज़ीरो टू टी बी। ठीक है, एंड एस ज़ीरो टी जो है वो ज़ीरो ही है फॉर ज़ीरो टू टी बी, दोनों चीज़ें हो गई। अब कायदे से इसका मतलब हो गया कि जो मेरा एस वन टी है दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस ज़ीरो, यानी कि सिंपली ए फॉर ज़ीरो तो ये एस वन टी नहीं लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, एंड सिमिलरली जब मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा तो जो मेरा ई डी निकल के आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू टी बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी टी। अब क्योंकि ए स्क्वायर का कोई लेना देना तो है नहीं टाइम के साथ, तो इसको इंटीग्रेशन जो है सिंपली ए स्क्वायर टी बी आ जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू टी, ये हो गई मेरी एनर्जी। और अगर मैं अंडर रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डायरेक्टली इसे यूज़ कर लूँ। ई डी मेरे पास आ गया। दूसरा सवाल है ई बी क्या होगा। तो ई बी जो है एवरेज बिट एनर्जी इज इक्वल टू ई एस वन माइन प्लस ई एस ज़ीरो, राइट, और इन दोनों का एवरेज, दो बिट्स के बारे में बात हो रही है तो इन दोनों का एवरेज होल डिवाइडेड बाय टू, बस। तो ये कैलकुलेट अगर करें, ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले बिट की एनर्जी और जो डिफरेंस एनर्जी है सेम ही आएगी ए स्क्वायर टी बी, दूसरे की एनर्जी ज़ीरो ही आएगी, तो एवरेज हो जाएगा ए स्क्वायर टी बी बाई टू। ठीक है, ये मेरी एवरेज बिट एनर्जी है। तो रिलेशनशिप भी हमारे सामने क्लियर ही है कि एवरेज बिट एनर्जी इज हाफ ऑफ द डिफरेंस एनर्जी। अब टी बी कुछ भी हो ये रिलेशन एस्टैब्लिश रहेगा, यानी कि कितने भी बिट रेट पे हम डेटा भेज रहे हैं। सिग्नल की पावर ए के हिसाब से अगर मैं देखूँ, सिग्नल की जो इंटेंसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, जो मर्जी हो रिलेशनशिप सेम रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो हमारे पास एक पिक्चर बहुत क्लियर है कि सेम ए और सेम टीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो ईडी और ईबी का रिलेशन इस तरीके से एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर है जी क्यू फंक्शन एस क्यू आर टी, और इसके अंदर डालना है ई डी बाई टू एन नॉट। ई डी हो गया ए स्क्वायर टी बी, और इसके नीचे हो गया टू एन नॉट। ठीक, ब्रैकेट किया बंद, अंडर रूट आ गया, और ये हो गया हमारे क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर टी बी बाई टू एन नॉट मेरा बेस फॉर्मूला हो गया जो यूनिपोलर एनआरजेड के केस में ट्रीट किया जाएगा। इसको अगर मैं ई डी बाई ई बी बाई एन नॉट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप देख सकते हो ए स्क्वायर टी बी बाई टू मेरे पास सामने दिख रहा है साफ साफ। तो इसको सिंपली ई बी बाई एन नॉट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इधर आएगा। ठीक, डन हो गया। तो ये हो गया मेरा यूनिपोलर एनआरजेड के केस में। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया मेरा पोलर एनआरजेड। पोलर एनआरजेड के केस में यही की यही सारी कहानी है। तो थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा। और बस फ़र्क यहाँ पे है कि एस ज़ीरो की रिप्रेजेंटेशन माइनस ए है, जिसका मतलब ये है कि एस वन माइनस एस नॉट जो है वो टू ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं टू ए क्यों होगा। और अब मैं अगर ई डी की बात करता हूँ तो ई डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए का होल स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया ये कहानी आ जाएगी फोर ए स्क्वायर टी वी बाई टू। सॉरी, नॉट बाई टू, फोर ए स्क्वायर टी वी। अब ई बी की जब मैं बात करूँगा तो ई बी का फॉर्मुलेशन जो है, अब आप अगर ध्यान से इसको समझें तो ए स्क्वायर यानी कि सिग्नल के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो चाहे वो प्लस ए हो चाहे वो माइनस ए हो, स्क्वायर करके वो ए स्क्वायर ही होने वाला है। इस वजह से ये जो इक्वेशन बनेगी ई एस वन प्लस ई एस नॉट, इसके अंदर दोनों ए स्क्वायर टी बी ही रहेंगे। ठीक है, जिसका मतलब है कि जो टोटल एवरेज एनर्जी निकल के आएगी वो ए स्क्वायर टी बी हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब ध्यान से अगर देखें तो ईडी और ईबी के बीच का जो रिलेशन है यहाँ पे, ये इधर था ट्वाइस का और इधर है फोर टाइम्स का। ये मेन डिफरेंस है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो ई बी की डेफिनेशन भी डिफरेंट है, और अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ईडी और ईबी का रिलेशन भी ज्यादा है, प्रोनाउंस्ड है, बड़ा है। इस वजह से जो पोलर एनआरजेड है, अगर मैं उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर निकाल दूँ, एक बार जरा इक्वेशन लिख ही लेते हैं, उसके बाद कहानी क्लियर हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर, दिस इज इक्वल टू, इसको उठाते हैं इधर रखते हैं, और अब यहाँ पे आ जाएगा फोर टाइम्स। फोर होने की वजह से न्यूमरेटर में आया टू और डिनोमिनेटर में से टू चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टू रूट ऑफ टू ए स्क्वायर टी बी बाई टू टी बी बाई एन नॉट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट वाइज देखूं तो ए स्क्वायर पॉजिटिव कांस्टेंट, टी बी कांस्टेंट, एन नॉट कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट्स हैं। जिसका मतलब ये है कि यहाँ और यहाँ के बीच में जो मेरा क्यू फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है वो डबल है। अगर मैं रूट के बाहर उसको ले आता हूँ तो इसके दो गुना यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट है। दो गुना आर्ग्यूमेंट होने की वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर है, क्यू फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बड़ा जितना होता है उतना क्यू फंक्शन की वैल्यू छोटी आती है। जिसका मतलब है कि एनआरजेड पोलर के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर कंपैरेटिवली काफी कम है इन कंपैरिजन टू यूनिपोलर। ठीक है, ये एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर आ जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं अब इसी इक्वेशन के अंदर रिप्लेसमेंट के बारे में बात करता हूँ तो ये टू ई बी बाई एन नॉट हो जाता है। अब ये जो टू ई बी बाई एन नॉट है, यहाँ पे ये नोटिस करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये रिलेशन तो यहाँ दिख ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड ये भी नोटिस करना इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ रूट टू फैक्टर से बड़ा नहीं है। यहाँ पे ई बी की डेफिनेशन भी कंपेरेटिवली इसके मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके मुकाबले सेम, अगर आप ये यूं कह दें कि भैया मुझे तो सेम एवरेज बिट एनर्जी ट्रांसमिट करनी है, यानी कि आपने किसी किस्म से ए को अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय रूट टू के हिसाब से यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पोलर एनआरजेड में आप
को कंपैरेटिवली, अगर आप कह रहे हो कि भाई मैंने सेम एवरेज बिट एनर्जी भेजनी है जितनी मैंने पोलर यूनिपोलर एनआरजेड के केस में भेजी थी, तो ऐसे केस में आपको रूट टू टाइम कम एम्पलीट्यूड भेजते हुए भी सिग्नल के अंदर एक इंक्रीमेंटल चेंज नजर आएगा। आपको एक बेटर सिग्नल टू नॉइज आपको बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी मिलेगा, बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है ना, एवरेज बिट एनर्जी सेम रखते हुए भी। तो ये आपका डिफरेंस का मेन फैक्टर है। और ऑब्वियसली अगर मैं दूसरी एडवांटेज यहाँ पे यूनिपोलर से पोलर जाने में ये भी आप नोट कर सकते हैं कि आपने कंपैरेटिवली जो ए की वैल्यू भेजी, जो आपने एवरेज डीसी पावर जो आप लाइन कोड को दे रहे हो वो भेजी, वो भी कंपैरेटिवली आपने हाफ पावर पे भेजी, यानी कि आपने उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को सिर्फ 70% पे भेजा, 1/√2 टाइम्स भेजा, एंड इवन देन यू आर गेटिंग अ बेटर probability of error. So by that logic, polar NRZ by far is much better in comparison to unipolar. Next is the case of RZ family. So let's talk about the RZ family. तो सबसे पहले ऑब्वियसली RZ यूनिपोलर के बारे में बात करें। ठीक है, RZ यूनिपोलर का कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कैसे डिफरेंट हो जाती है? यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो एक नहीं रहती है, ये दो पार्ट्स की डेफिनेशन हो जाती है। तो लेट्स ट्राई टू यूज दैट टू पार्ट डेफिनेशन है। फर्स्ट पार्ट इज ऑब्वियसली ए। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक दिस इनटू अ 2x2 मैट्रिक्स, दिस इज ऑलवेज बेटर। तो हम इसके इस तरीके से देखते हैं, ए और दूसरा पार्ट है जी 0। ठीक है, ये है फॉर टी इन 0 to TB/2। ठीक है, एंड दिस इज फॉर t in TB/2 to TB। ठीक, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये S1 की डेफिनेशन है, एंड ऑफ कोर्स S0 की डेफिनेशन सेम है। तो अब ये जो है S0 की डेफिनेशन जो है वो 0 ही है। तो S1 माइनस S की जो डेफिनेशन है वो मेरी S1 की डेफिनेशन के इक्वल हो जाएगी। तो इसको लेते हैं और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है। अब बात करते हैं ईडी की। तो ईडी की कैलकुलेशन ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ एक पार्ट में ही चलेगी, 0 से TB/2 तक, और 0 हो गई दूसरा पार्ट, तो मुझे कुछ करना नहीं उसमें। तो जो इंटीग्रेशन मेरा यहाँ है, सेम इक्वेशन सेम एवरीथिंग, इसी को लेंगे यहाँ डालेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा ऑब्वियसली ये a² ही रहेगा, और दूसरा ये कि जो इसकी लिमिट है ये बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कायदे से a² का इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन सिर्फ TB/2 के फैक्टर तक हुआ। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे ई डी की वैल्यू का कंपैरिजन अगर मैं करूं, तो ये आया a² TB, ये आया 4a² TB, ये आया a² TB/2। तो अभी तक की सबसे छोटी जो ईडी की वैल्यू आई है वो ये आई है। एज अ रिजल्ट जो अभी तक का सबसे छोटा क्यू फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बनेगा वो इस केस में बनेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक की सबसे पुअर परफॉर्मिंग एज फार एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर के बारे में बात करेंगे, वो आरजेड यूनिपोलर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आरजेड यूनिपोलर इज मोस्ट एरर प्रोन। सिमिलरली इसी कहानी में ई डी की डेफिनेशन के साथ साथ ई बी की डेफिनेशन भी हम अभी तक करते हैं, तो अभी भी करेंगे। और अब कायदे से ई बी आपको वही है, लॉजिक यही है कि आपको इसे यूज़ करना है।
तो इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि ES1 जो है वो भी a²TB/2 है, सिंस हमारा इक्वेशन का फॉर्मुलेशन तो सेम ही है, और दूसरी जो एनर्जी है वो ज़ीरो है ना। तो ये जो सेकंड ES0 की एनर्जी है वो है ज़ीरो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया a²TB/4, यानी कि डेफिनेशन वाइज ED और EB के बीच में वही रिलेशन है जो मेरा यूनिपोलर NRZ के केस में था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिपोलर सीक्वेंसिंग में ED और EB का एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशन है, और पोलर के केस में आप नोटिस करेंगे, जैसे मैं RZ पोलर या जिसको हम बाइपोलर भी कह देते हैं ना, जब वो करेंगे तो उसके केस में भी हमें ये चीज़ दिखती है कि वो a²TB, जैसे ये 4 गुना का फैक्टर है इधर और इधर, वैसे ही हमें वहाँ भी दिखेगा। तो ये हो गई कहानी a²TB/4। एंड सिमिलरली जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो भी क्यू फंक्शन के तौर पे स्क्वायर रूट फॉर्म में। अब ED/N0 को उधर फिट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा a²TB/4 N0 ये हो गया। ठीक है, एंड यही एग्जैक्ट चीज आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि क्यू फंक्शन के तौर पे इसको एक और तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, जो कि हो जाएगा EB/N0। अब यहाँ पे नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये EB/N0 और ये EB/N0 दो अलग चीज़ हैं। यहाँ पे EB की डेफिनेशन a²TB/2 है, यहाँ पे डेफिनेशन a²TB/4 है, जिसका मतलब है कि ऑल्दो आपको फॉर्मूला सेम दिख रहा है, तो अगर आप यूं कहो कि हाँ भाई EB/N0 अगर दोनों का सेम है तो बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर बेटर है, तो आप कहोगे दोनों की सेम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर का फॉर्मूला अगर EB सेम है और N0 ऑब्वियसली सेम चैनल के बारे में बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर सेम है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली ये है कि ये तब हो रहा है जब आप ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि यूनिपोलर NRZ को कंपैरेटिवली कम एम्पलीट्यूड के साथ भेजा जाएगा। यहाँ पे एवरेज बिट एनर्जी a²TB/4 करने के लिए आपको √2 टाइम्स कम एम्पलीट्यूड के साथ उसे ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो अगर यूनिपोलर NRZ और यूनिपोलर RZ सेम एवरेज एनर्जी के साथ भेजे जाएंगे तो उन दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर भी सेम होगा। लेकिन अगर आप उन दोनों को सेम एम्पलीट्यूड के साथ भेजेंगे, दोनों बातों में डिफरेंस है, अगर आप दोनों को सेम एम्पलीट्यूड के साथ ट्रांसमिट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर RZ यूनिपोलर की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू पोलर यूनिपोलर NRZ सीक्वेंस। इन दोनों चीजों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है नोट करना। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं RZ, जिसे हमने बाईपोलर के नाम से पढ़ा है। आपको कुछ टेक्स्ट में ये पोलर के नाम से भी मिलेगा, देर इज़ नो प्रॉब्लम, बात वही हो रही है। तो अब यहाँ पे इसको भी एक एक करके टैकल करते हैं। तो better use the next page for this one. So let's just use the next page for this one. Yep. S1 की डेफिनेशन तो यही है। अच्छा, S0 की डेफिनेशन भी यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये माइनस ए हो जाती है। अब जैसे ये माइनस ए हो गई, हमारी एवरेज बिट एनर्जी का जो लॉजिक मैं देखता हूँ तो वो दोनों a² का इंटीग्रल हो जाते हैं TB/2 तक। तो दोनों की जो S1 और S0 सिंबल्स की जो अपनी अपनी एनर्जी है वो a² TB/2 ही रहेगी। फर्क एक और है कि जब हम इस एनर्जी को कैलकुलेट, ये डिफरेंस के बारे में बात करेंगे,
तो जो डिफरेंस का लॉजिक है, डिफरेंस के लॉजिक में ये 2a हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे ये 2a हुआ, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, अगर आप मतलब जब इसकी एनर्जी निकालोगे, तो एनर्जी निकालने के लिए ये हो गया और हो गया 2। तो जैसे ये 2a² हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4a² TB/2 हो जाएगा, ठीक है। और 4a² TB/2 होने की वजह से जो इधर आपका फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो आ जाएगा 2a² TB, ठीक है। अब इस रिलेशन को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो हमने 4 केसेस बात करें उन सब में एक सिंपल रिलेशनशिप निकल के आ रहा है। सबसे छोटी क्वांटिटी आपने देखी आर जेड यूनिपोलर में a²TB/4, सॉरी a²TB/2 ED की वैल्यू आपने देखी। इससे बड़ी आपने देखी यूनिपोलर के केस में, जब आपने यूनिपोलर NRZ के केस में जब आपने देखा ये वैल्यू आई a²TB। इससे बड़ी आपने देखी RZ पोलर के केस में, बाइपोलर के केस में जब 2a²TB हो गया। एंड सबसे बड़ी आपने देखी पोलर NRZ के केस में जब ये 4a²TB हो गया। तो देख डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप इसी ऑर्डर में चारों को लिख सकते हैं कि हाँ भाई, अगर मुझे लिखना है कि बेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर क्या है और वर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर क्या है और क्या रिलेशन है, तो हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं इसकी ईबी के फॉर्म में। तो ई बी जो है उसके लिए केस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, a²TB/2 का लॉजिक है। तो ये पूरी फॉर्मुलेशन उठा लेते हैं और ये फॉर्मुलेशन यहाँ पे डाल। तो यहाँ पे एक बस जो ये आपका फैक्टर है a²TB/2 वाला, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की जो एवरेज निकल के आएगी वो एवरेज भी बाई 2 होगी, ठीक है। अगेन मैं आपको वही पॉइंट दोबारा दिखाना चाहूंगा कि पोलर और यूनिपोलर के बीच का जो रिलेशन था, पोलर और यूनिपोलर, आप ध्यान से देखिए, पोलर और यूनिपोलर के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप देखने की कोशिश करता हूं, तो सॉरी, पोलर के केस में जो ईडी और ईबी का रिलेशन था वो 4 टाइम्स का था। सिमिलरली आरजेड के पोलर के केस में भी 4 टाइम्स का डिफरेंस, 4 टाइम्स का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फाइनली मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर, जो कि है क्यू फंक्शन ऑफ SQRT। अब क्यू फंक्शन ऑफ SQRT में डाला मैंने ED/N0, ED/2 N0, तो ये हो गया सिंपली a²TB/N, ठीक है। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी बन गई। अब इसी को जब मैं इधर देखता हूँ, y2 का फैक्टर है जो यहाँ पे है नहीं, तो y2 का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है तो ऊपर भी एक 2 डालना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि दिस कैन बी रिटन एज क्यू फंक्शन ऑफ SQRT 2 EB बाय N0, ठीक है। ये कहानी बन गई √2 EB। और ये जो है, अब आप देखो फिर से वही बात आ गई कि ये रिलेशनशिप जो अभी हमने निकाला और जो पोलर NRZ का रिलेशनशिप है, उन दोनों केसेस में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों की अगर EB/N0 की वैल्यू सेम है, अगर EB/N0 की वैल्यू सेम है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी सेम होगी। लेकिन अगर सेम एम्पलीट्यूड यानी कि सेम ए की वैल्यू से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर जो है वो पोलर एनआरजेड के पोलर आरजेड के केस में या बाइपोलर आरजेड के केस में ज्यादा होगा, बुरा होगा इन कंपैरिजन टू एनआरजेड, ठीक है। तो दो अलग चीजें हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करिए। सेम EB/N0 की वैल्यू एक अलग रिलेशन है, सेम एम्पलीट्यूड एक अलग रिलेशन है। कौन से बारे में बात हो रही है ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कहानी भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। अब अगले काम पे आते हैं और नेक्स्ट हमारा आ जाता है, लेट्स टॉक अबाउट AMI।
तो AMI में भी दो हैं, NRZ AMI है और RZ AMI है। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। NRZ AMI कंपेरेटिवली आप उतना रेलेवेंट है नहीं कह सकते हैं, बट है। और रिलेशनशिप अगर मैं क्लोजेस्ट रिलेशनशिप निकालने की सोचूं तो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप जो निकलेगा वो यूनिपोलर NRZ के साथ निकलेगा, क्योंकि जीरो की रिप्रेजेंटेशन हमेशा जीरो रह रही है और ऑल्टरनेशन जो हो रही है वो बेसिकली मेरी हो रही है उसके साथ वन, ऑल्टरनेट अकरेंसेस ऑफ वन के साथ हो रही है। तो यही का यही रिलेशन एज इट इज़ मैंने पूरा लिख लिया है यहाँ पे। और इस रिलेशनशिप को कुछ इस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ ऐसी है कि एक प्लस माइनस ए की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है S1 की, जीरो की हमेशा जीरो रहेगी। इसकी वजह से जो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी ये भी प्लस माइनस रहेगी। ठीक है। अब ED की वैल्यू का देखूंगा तो वो ब्रैकेट में डाल के प्लस माइनस कर भी दो, जब उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो वही रहेगी। इसका मतलब है कि एवरेज एनर्जी ED की सेम रहने वाली है। सिमिलरली EB भी सेम रहने वाला है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर भी सेम रहने वाला है। ठीक है। यानी कि NRZ AMI और यूनिपोलर NRZ की प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर में थियोरेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन चेंजेस हो सकते हैं, सिर्फ उस तरीके की पॉइंट्स आ सकते हैं, उसके अलावा लेकिन कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। सेम कहानी, एग्जैक्टली सेम स्टोरी आ जाती है RZ के केस में। जब आप RZ AMI के बारे में बात करते हो तो RZ AMI में भी आप सीधे सीधे यूनिपोलर RZ वाला केस उठा सकते हो और कहानी बिल्कुल सेम रहेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ फॉर्मुलेशन जो लिखने का तरीका है उसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है कि भाई ये प्लस माइनस है और उसी साथ में ये भी प्लस माइनस है, और बस कहानी खत्म। इसके अलावा बाकी सारा का सारा काम हिसाब किताब सेम ही रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। तो जब आप कैलकुलेट करते हो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं, बस लिखने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो RZ NRZ AMI का भी लॉजिक यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर। तो ये मैनचेस्टर जो है, या जिसको हम बाईफेज लेवल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। इसको कर देते हैं, एक मिनट दीजिए। थोड़ी सी मदद ले लेते हैं RZ पोलर से लिखने के तरीके के लिए, और बस इससे काम बन जाएगा हमारा। ये यहाँ पर डाला, अब देखते हैं। हाँ जी। तो S1 की रिप्रेजेंटेशन होती है पॉजिटिव A से नेगेटिव A। ठीक। S0 की रिप्रेजेंटेशन होती है नेगेटिव A से पॉजिटिव A। ठीक है। दोनों चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A माइनस माइनस A तो हो गया 2A, और माइनस A क्या हो गया, -2A। तो यहां तक तो कहानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई कि दोनों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को लिखा कैसे जा रहा है। ED की कैलकुलेशन में गेम थोड़ी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके अंदर अब एक इंटीग्रल ना होके दो इंटीग्रल आएंगे। उसके लिए मुझे जरा एक गलती सुधार लेनी चाहिए पहले। तो ये हो गया इंटीग्रल। अब इसके अंदर एक इंटीग्रल तो चला गया 0 से TB/2 तक। एक और इंटीग्रल है जो कि अब जा रहा है TB/2 से और जा रहा है TB तक। ठीक है। ये इंटीग्रल है। अब ये इंटीग्रल जो है ये है -2a होल स्क्वायर dt। ऐसे। ठीक।
जैसे ही आप इनको स्क्वायर करके इंटीग्रेट करते हो, एक हो गया 4a² TB/2, दूसरा हो गया 4a² TB माइनस TB/2। तो एक तो हो गया 4a² TB/2, ठीक। दूसरा हो गया 4a², ठीक है। और ब्रैकेट में हो गया TB माइनस TB/2, ठीक। ये कहानी होगी। जैसे ये सब्ट्रैक्शन और ये सारी कहानी आप सॉल्व करते हो, ये 4/2 हो गया, TB माइनस TB/2 हो गया, फिर उसका 2 का फैक्टर भी 4 को काट गया, अल्टीमेटली 2a² TB प्लस 2a² TB, यानी कि 4a² TB, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगेन जो S1 और S0 हैं उनकी एनर्जी, अभी तक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही थी कहानी, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब जो है मैं एक छोटी सी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे एक एनर्जी की कैलकुलेशन का लॉजिक भी डाल देता हूँ, जिसके अंदर सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि a² और ये -a² का इंटीग्रेशन। और अगर ये कायदे से आप देखते हो तो क्या आ रहा है, a² इंटू TB/2 प्लस a² इंटू TB/2, यानी कि आ रहा है a² TB, ठीक है। सिमिलरली S0 के केस में भी एग्जैक्ट सेम थिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है जी। इसको उठाओ, बस इतना सा फ़र्क है, इसको S0 कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सिर्फ इस इतना चाहिए मुझे, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं a² TB, ठीक है। तो एवरेज जैसे ही निकालोगे ये सारा उड़ जाएगा और सिर्फ a² TB आ जाएगा। अब दोबारा से देखो कि आपने सिंक्रोनाइजेशन लॉस प्रोटेक्ट कर लिया मैनचेस्टर में, आपको पता है सेल्फ क्लॉकिंग होता। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर अभी तक की जो बेस्ट हमने कैलकुलेट करी थी पोलर NRZ के लिए, यानी कि जिसके अंदर ED की वैल्यू 4a² TB आई थी, तो अगर वही काम मैं यहाँ पे उठा करके डालता हूँ तो इतना भी क्लियर है कि ये 2a² TB/2 आ जाएगा, 2a² TB/N0 आ जाएगा, 4 का फैक्टर आने की वजह से डिनोमिनेटर का 2 का फैक्टर उड़ जाएगा, और ये वही वैल्यू हो जाएगी, और Q फंक्शन भी 2EB/N0 के लॉजिक पे आ जाएगा। तो कायदे से एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है पोलर NRZ के मुकाबले अगर मैं मैनचेस्टर कोड का यूज़ कर रहा हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने ऑफसेटिंग का लॉजिक कुछ ऐसा लगाया है कि वो मिडल में अपनी जो ट्रांजिशन है वो चेंज करके दे रहा है। अब ये मिडल ट्रांजिशन चेंज करने से जो आपको डिसएडवांटेज हुई है वो है बैंडविड्थ बढ़ने की। आपकी बैंडविड्थ नियर अबाउट डबल हो चुकी है। तो मैनचेस्टर कोड जो है वो सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर देगा, वो आपको सेम क्या कहते हैं, सेम नहीं सॉरी, वो आपको ज़्यादा बैंडविड्थ यूटिलाइज करेगा जो कि एक डिसएडवांटेज है, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर देगा, और साथ में सेल्फ क्लॉकिंग होने की वजह से उसका जो कंपैरेटिव रिसीवर है उसके अंदर आपको किसी किस्म की क्लॉकिंग फैसिलिटी की या PLLs की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली नहीं होती है, और सिंक्रोनाइजेशन लॉसेस, DC वॉन्डरिंग लॉसेस, इस तरीके की चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आती है। इस वजह से मैनचेस्टर एक बहुत ही प्रेफर्ड लाइन कोड है, लेकिन वहाँ पे नहीं जहाँ पे बैंडविड्थ का कंस्ट्रेंट होता है। तो ये हो गया मैनचेस्टर। अब यहाँ पे हम एक कंपैरिजन लिखने की पोजीशन में आ चुके हैं। कंपैरिजन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि कंपैरिजन ऑन बेसिस ऑफ सेम EB/N0, ठीक है। कंपैरिजन
ऑन बेसिस ऑफ सेम ई बी बाई एन नॉट। अगर ई बी बाई एन नॉट की वैल्यू सेम है, यानी कि आपने एम्पलीट्यूड वगैरह सब उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, तो उस मुकाबले अगर देखा जाए तो आपका जो दोनों यूनिपोलर सीक्वेंसेस हैं और ए एम आई है, ये तीनों सेम होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि आर जेड यूनिपोलर इक्वल्स एन आर जेड यूनिपोलर इक्वल्स एन आर जेड ए एम आई इक्वल्स एन आर जेड ए एम आई, ठीक है। तो ये सारे कहानियां सेम हैं, लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट, अब इनका कंपैरिजन करता हूं दूसरे केस के साथ, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर फॉर nrz polar, which is going to be equal to nrz, I'm sorry, rz bipolar slash polar, depending on the text you are reading, and Manchester, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है। अब दूसरा कंपैरिजन है ऑन बेसिस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांस ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ए। टीबी तो हम कांस्टेंट ही मान रहे हैं, तो सेम एम्पलीट्यूड ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटेशन ए अगर मैं यूज कर रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब मेरे पास एक रिलेशन है, मतलब अब मेरे पास एक हायरार्की है। तो हायरार्की कैसे है? सबसे कम होगा आर जेड यूनिपोलर का, जो कि ए एम आई आर जेड के इक्वल है। ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर लेके आएंगे, ठीक। नेक्स्ट है एन आर जेड यूनिपोलर, जो कि इक्वल होगा एन आर जेड ए एम आई के, ठीक। इससे बड़ा होगा, मतलब इससे छोटा होगा आर जेड पोलर स्लैश बाइपोलर, ठीक। इससे बड़ा होगा, फिर से गलत बोल रहा हूं, इससे छोटा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर छोटा होगा एन आर जेड पोलर का, जो कि इक्वल है मैनचेस्टर का। तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन सारे लाइन कोड्स के बीच का, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप है, कोई डाउट की बात नहीं है। और इस तरीके से हमारा सारे लाइन कोड्स के रिलेशंस यहाँ पे कवर हो जाते हैं, जितने हमने अपने कोर्स में पढ़े थे। दोबारा याद दिला दूं, यहाँ पे डिफरेंशियल एनकोडिंग की बात अलग लाइन कोड्स के लिए हमने पहले करी हुई है, बट डिफरेंशियल एनकोडिंग वाले लाइन कोड्स को हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज डिफरेंशियल एनकोडिंग थियोरेटिकली आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर को चेंज नहीं करती है, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस के बारे में बात नहीं हो रही है। याद रखेंगे कि अजम्पशन ये है, जिस अजम्पशन के बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला निकाला था क्यू फंक्शन वाला, जो पहला फॉर्मूला था हमारे कोर्स का, ये इस इक्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये इक्वेशन हमने इस बेसिस पे डेराइव करी थी कि आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0 और 1 सेम है, ठीक है। तो डिफरेंशियल एनकोडिंग है या नहीं है, वो सिर्फ इस चीज को डिटरमिन कर रही है कि कितने 1 और कितने 0 ट्रांसमिट किए गए हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये अजम्पशन लगाई जा रही है कि डिफरेंशियल एनकोडिंग जो कि आपके लॉजिकल डेटा पे लगाई गई थी, वो लगाने के बाद भी आपके 0 और 1 हो या तो हो चुके हैं या सेम है या जो भी है, लेकिन मेरा ट्रांसमिशन का जो प्रोबेबिलिटी है 1 और 0 की, वो सेम है। तो इस पॉइंट पे हमारा जो ये सारा का सारा डिस्कशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स और रिसीवर्स के लॉजिक पे, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड यूनिट में जो लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे वो होता है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि चैनल का इफेक्ट और AWGN को कैसे ओवरकम किया जाता है।
अब इसके आगे जो बात होगी वो ये होगी कि अज्यूमिंग के AWGN का इफेक्ट नेगेट हो गया है और अज्यूमिंग के आपने चैनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर लिया है, अब लास्ट पॉइंट जो रिसीवर्स के लॉजिक में रह जाता है वो ये है कि आइडियलिटी के बावजूद, हर चीज़ आइडियलिटी के साथ करने के बावजूद कई बार, और कई बार नहीं, यूँ कह सकते हैं कि हर बार हमारे पास सिग्नल में एक किस्म की स्प्रेडिंग, एक किस्म की एक्सपेंशन आती है जब हम उसे ट्रांसमिशन और रिसीवर के थ्रू पास करते हैं। ये जो एक्सपेंशन है इसकी वजह से हमारे अपने आप की सिग्नल खुद भी अपने आप में एक नॉइज़ को जनरेट करता है और नॉइज़ जो है वो बेसिकली इंटरफेरेंस के तौर पे समझी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है। तो अगले पॉइंट पे, अगले सेशन में हम इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है और थियोरेटिकली ज़ीरो कैसे किया जा सकता है। वो हमारे यूनिट 3 का लास्ट पार्ट होगा। अभी के लिए थैंक यू और यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग